So in the previous class we have discussed the concept of Venn diagram and its relation in terms of two events A and B. We have in fact discussed that P of A union B, that is given as derivation सहित बात करी थी, P of A plus P of B minus of P of A intersection B. A union B in fact represent करता है, क्या represent करता है? Occurrence of at least one of the two events, occurrence of at least one of the two events, है ना? A हो, B हो या दोनों हो. At the same time we have discussed exactly one of the two events, P of A plus P of B minus twice of P of A intersection B, that we have discussed. कुछ और questions की बात करेंगे उसी से related. The question is, two dice are thrown together once. Two dice are thrown, it is there. Two dice are thrown together once. Find the probability of getting an even number on first dice or a total of 8. देखिएगा. Two dice are thrown together once. That means sample space is clearly of 36. Probability of getting an even number on first dice. क्या required है हमें? Even number on the first dice. और a total of 8. फर्स्ट डाइस के ऊपर इवन नंबर हो या फिर टोटल जो है वो टोटल 8 हो. प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायर्ड. इट इज नथिंग बट इनफैक्ट P of A union B is required here. P of A plus P of B minus of P of A intersection B. That is probability of getting an even number on the first dice plus probability of getting total of 8, and will be subtracting the cases if possible minus of probability of even number on first intersection total of 8, right? P of A union B लिखना है हमें, that is P of A plus P of B minus of P of A intersection B. The probability of even number on the first dice or a total of 8 which is required, which is nothing but P of A union B. So even number on the first dice plus probability of total of 8 minus probability of even number on the first dice as well as total of 8. अगर ये 0 हो जाता है तो हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब P of A intersection B 0 हो जाता है, राइट? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सैंपल स्पेस इज ऑफ 36. इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, तो even number on the first dice, if number 2 is there, तो number 2 is there, तो second dice के ऊपर 1 to 6 हो सकता है. even number on the first dice 4 or 1 to 6 and 6 and 1 to 6. So how many cases are there? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 plus 6 plus 6. Yes, it is 18. 18 by 36. फाइन, बढ़िया. प्लस टोटल ऑफ 8. अब टोटल ऑफ 8 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि दो डाइस थ्रो किए जाते हैं? टोटल ऑफ 8 अगर मुझे रिक्वायर्ड है, टोटल ऑफ 8 के केसेस बना लें यार हम, ज़्यादा बेहतर होगा. टोटल ऑफ 8 6 2, राइट? 5 3 4 4 3 5 2 6. और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 1 2 3 4 5, दैट इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 36. एंड देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द कॉमन ऑफ द टू, कि क्या कुछ दोनों में कॉमन है क्या? P ऑफ इंटरसेक्शन B की बात करते हैं. कॉमन का मतलब क्या हुआ? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एज वेल एज टोटल ऑफ 8. फर्स्ट डाइस के ऊपर इवन हो और टोटल भी 8 आ जाए. इट इज वन ऑफ द केस. 6, 2 4, 4 is there and 2, 6 is there. Out of these 5 cases there are 3 cases which is common to both. दिख रहा है क्या आप लोगों को? So minus of 3 by
36. Are you getting the concept of P of A union B, which is nothing but P of A plus P of B minus of P of A intersection B? अगर मान लीजिए ये कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते तो हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से ये जीरो हो जाता. P of A union B is equals to PA plus PB then, क्योंकि P of A intersection B फाई होता, जीरो होता अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तब. So it is nothing but 18 plus 5 23, 20 by 36. So easily we are getting the result. Look for one more simple question there. Probability of occurrence of A is given as 1 by 4. Probability of occurrence of B is given as 2 by 5. P of A union B is given as half. Data या information given to you. और required है आपको find out करना है P of A intersection B. P of A intersection B complement. That means occurrence of A but non-occurrence of B. And then A complement intersection B. And then A complement intersection B complement. दो इवेंट से रिलेटेड है अभी तक सब बात. देखिएगा P of A intersection B जो भी रिक्वायर्ड है. सबसे पहली बात वो तो डायरेक्ट है P of A union B, दैट इज P of A प्लस P of B माइनस ऑफ P of A intersection B. बिना कोई डाउट के if your P of A is given, P of B is given, so P of A union B is given, so P of A intersection B तो डायरेक्ट होगा. All the information is given to you. What is that value please? A intersection B की वैल्यू क्या आ रही है? 3 by 20. ओके, कोई खास बात नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाली बात थी. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑकरेंस ऑफ A बट नॉन ऑकरेंस ऑफ B. A का होना बट B का नहीं होना. ऑकरेंस ऑफ A बट नॉन ऑकरेंस ऑफ B. वेन डायग्राम में अगर मैंने आपको ये शो किया है तो ऑकरेंस ऑफ A बट नॉन ऑकरेंस ऑफ B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज दिस रीजन ना. इसको आप A माइनस B भी कह सकते हो. ऑकरेंस ऑफ A बट नॉन ऑकरेंस ऑफ B. सो P ऑफ A intersection B complement can be written as A intersection B complement can be written as P of A माइनस ऑफ P of A intersection B. सीधी सी बात है, ज्यादा लोड है नहीं कुछ भी. P of A intersection B ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया. P of A intersection B complement occurrence of A but non occurrence of B. That means this reason is required. So P of A और P of A में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? A intersection B. That is nothing but 1 by 4 minus of 3 by 20. ठीक है. Likewise P of A complement intersection B, non occurrence of A but occurrence of B. क्या बोलते हो आप? Non occurrence of A but occurrence of B. This is the reason then. This is the reason. A का ना होना बट B का होना, तो ये टोटल P of B है. A इंटरसेक्शन B हटा दो आप. माइनस ऑफ P of A इंटरसेक्शन B. P of B 2 by 5 माइनस ऑफ 3 by 20. रिजल्ट होगा. आ रहा है ना समझ में? What about the last one? Non occurrence of A and as well as non occurrence of B. ना A का होना ना B का होना. ना A हो ना B हो, ये होना ही नहीं. P of non occurrence of A as well as non occurrence of B. Yes, it can also be written as, इसको लिखा जा सकता है. क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? Non occurrence of A as well as non occurrence of B can also be written as P of 1 minus P of A union B. A union B मतलब ये कंप्लीट रीजन हो जाता है, और इस रीजन को हटा दीजिए वन में से.
हमने जाना है ना, हमने समझा है व्हाट इज ए यूनियन बी. ए यूनियन बी कंप्लीट, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. ए यूनियन बी अगर मैं कहता हूं तो ए यूनियन बी इज दिस रीजन. ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, दिस इज द रीजन. मुझे चाहिए ना ए हो ना बी हो, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. हटा दो इस पूरे रीजन को, तो विल बी गेटिंग क्या, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए एज वेल एज नॉन ऑकरेंस ऑफ बी. ना ए हो ना बी हो, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ 1/2 which is half, right? एक्चुअल में अगर इसको एक और याद दिलाता हूं मैं आपको, सेट्स थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो सेट्स थ्योरी में एक होता है डी मॉर्गन्स रूल. सेट्स थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो सेट्स थ्योरी में होता है एक डी मॉर्गन्स रूल. डी मॉर्गन्स रूल के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर है, ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही हमने फाइंड आउट किया है. ए यूनियन बी ये टोटल शेडेड रीजन और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस कर दिया. तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर देखना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यस, द सेम वी हैव डन हियर. समझ रहे हो क्या? 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, क्योंकि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट, आप इसको लिख सकते हैं कि पी ऑफ A complement intersection B complement is nothing but P of A union B and complement of that पूरे का, using the De Morgan's rule. At the same time एक और रूल होता है और वो होता है A, De Morgan's में दो बातें ना, A intersection B and complement of that. Anybody? एक दो रूल्स होते हैं, डी मॉर्गन्स रूल कहलाते हैं, सेट्स थ्योरी के दौरान बताए जाते हैं. क्लास 11 में सेट्स थ्योरी और उसके दौरान ही बताया जाता है, राइट? तो ये तो हमने आसानी से हमने बात कर ली, यहां कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑकरेंस ऑफ ए बट नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, तो विच इज सिंपली पी ऑफ ए ऑकरेंस ऑफ ए बट नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इंटरसेक्शन बी. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बी का होना बट ए का नहीं होना, तो बी का होना पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना? और यहां पे दोनों का ना होना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी. या मैंने इसीलिए बहुत प्रॉपर वे में सबको समझा दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी. That's what we have used here. Now we discuss about the three events A, B, C. And again through Venn diagram only we try to understand the concept of occurrence of exactly one of the three, exactly two of the three, at least one of the three, at least two of the three. सारी बातें इन Venn diagram के थ्रू ही समझते हैं हम. Three events are there, A, B and C. These are the three events, right? अब यहां पे हम थोड़ा सा क्लियर कर लें. इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, ए और बी का साथ में, ए सी का साथ में, ए बी और सी का साथ में, तीनों का भी कुछ पोर्शन साथ में. हम मार्क कर लेते हैं उसको और उसके अकॉर्डिंग बात करें. This is the reason which is nothing but B and B intersection C. B intersection C कौन सा बताया मैंने आपको? B intersection C. This is the B intersection C. जो कॉमन है, B और C दोनों में कॉमन है, ठीक है? What about this? It is nothing but A intersection B intersection C, which is common to all the three. तीनों इवेंट्स में कॉमन है, A, B, C तीनों का कॉमन. It is nothing but A intersection C.
आप एक और बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि व्हेन आई हैव रिटन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज देयर. इफ आई राइट बी इंटरसेक्शन सी, ऑकरेंस ऑफ बी एंड सी, तो ऑकरेंस ऑफ बी एंड सी में तीनों का ऑकरेंस भी इंक्लूडेड है ना. तो ए इंटरसेक्शन सी, मान लीजिए इसको ऐसे, इससे डिनोट करता हूं मैं, एंड देन ए इंटरसेक्शन बी, this is A intersection B. Three events are there, event A, event B, event C. और वेन डायग्राम ठीक है हमने देखा. A intersection B intersection C denotes the occurrence of all the three simultaneously, तीनों का साथ में होना. A intersection B, occurrence of A as well as B. बट आप ये भी देख रहे हैं कि A intersection B अगर मैं लिख रहा हूं तो A intersection B हो या B intersection C हो या A intersection C हो, A intersection B intersection C is always included, वो हमेशा included है. ठीक है, मैं वन बाय वन बात चालू करता हूं. इफ आई जस्ट आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, है ना, सेट्स थ्योरी की बात करते हैं, सेट्स थ्योरी में डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस करेंगे तो विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी. इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि पहले सेट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि n ऑफ A यूनियन B, which is n of A number of element present in A plus number of element present in set B minus number of element present in A intersection B. सैंपल स्पेस से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आ जाएगा. अभी मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए, सिंगल इवेंट की बात कर रहा हूं. प्रोबेबिलिटी और सारा वेन डायग्राम आपके सामने है. प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of only A. Probability of occurrence of only A. How can you write that probability? है ना, I want only A. दोस्तों only A से मतलब क्या हुआ? Only A की बात करेंगे, that means this reason only, है ना. This is only A. कैसे लिखोगे आप only A? Occurrence of a single event, only A. First of all, P of A. बट P of A जब मैं लिखता हूं, ये बिल्कुल समझने वाली बात, और ये वेन डायग्राम के थ्रू बहुत प्रॉपर्ली समझेंगे हम, रटने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली समझ में आएगा. P of A, कंप्लीट P of A. लेकिन P of A मुझे तो केवल ओनली A की बात करना है. सो माइनस किया मैंने, क्या माइनस किया? A intersection B. A intersection B मतलब साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द टू, सब्ट्रैक्ट किया. A intersection B तो नहीं चाहिए मुझे, माइनस ऑफ A intersection C. तो P of A और P of A में से मैंने P of A intersection B. अच्छा एक और बात है, अलर्टनेस के साथ में देखिएगा. आधी अधर देखोगे समझोगे और फिर क्लास के बाद आओगे कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, तो मजा नहीं आएगा. यहीं पर ठीक ढंग से समझ लीजिए. मैं एक बार दो बार तीन बार समझा रहा हूं मैं, है ना. कंप्लीट अलर्टनेस, समझते हो ना अलर्टनेस का मतलब? पूर्ण जागृत अवस्था में. P ऑफ A में से P ऑफ A इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट किया. दिस पार्ट मैंने सब्ट्रैक्ट किया, नहीं चाहिए. A इंटरसेक्शन C भी सब्ट्रैक्ट किया. लेकिन हुआ ये कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, P ऑफ A लिखने पर कितनी बार आ रहा था? P ऑफ A लिखने पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज कमिंग वंस. लेकिन आपने क्या किया? A इंटरसेक्शन B रिमूव किया, फिर B A इंटरसेक्शन C रिमूव किया, तो आपने कितनी बार? दो बार रिमूव कर दिया. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज कमिंग ओनली वंस. मुझे नहीं चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन हमने क्या उसे दो बार रिमूव कर दिया. एक बार एक्स्ट्रा था, हमने दो बार रिमूव कर दिया. P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. That is nothing but the probability of occurrence of only A.
if I write probability of occurrence of only B now, बहुत आसानी से आप समझेंगे, आप कोई खास बात नहीं है उसमें, समझ लें पहले बोर्ड पे, बाद में लिख लेना, टाइम दूंगा मैं। डेमो डेमो क्या ऐसे ओनली बी, बोला सर अभी तो आप कुछ भी कर लो, अपन तो वैसे ही देख रहे हैं। P ऑफ B, जब मैंने P ऑफ B लिखा है ओनली B, P ऑफ B, clearly A intersection B is coming extra, B intersection C is coming extra, as well as this portion is also coming extra. So when this portion means A intersection B intersection C, so A intersection B रिमूव किया, B intersection C रिमूव किया, लेकिन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दो बार रिमूव कर दिया। ऐड कर दिया उसको। एंड लाइकवाइज, यार ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं मैं, फिर ये सारे रिजल्ट्स एक साथ कंबाइन करके हम लिख लेंगे, ठीक है। लाइकवाइज ओनली C, P ऑफ C माइनस ऑफ P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस, ये तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट्स की बात कर ली, ओनली A ओनली B एंड ओनली C, ओनली A ओनली B ओनली C आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है क्या? ओनली A की बात करिए, दिस इज ओनली A, दिस इज ओनली B, है ना, दिस इज ओनली C, ये केवल लिखा है मैंने। अब मैं अगर आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, दो इवेंट्स की बात हम कर चुके थे, अब ये तीन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इवेंट्स। एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री का मतलब हुआ ए तो केवल ए, बी तो केवल बी और सी तो केवल सी। आपको क्या लगता है क्या कर देना चाहिए? ओनली ए ओनली बी और ओनली सी, तीनों को ऐड कर दीजिए। ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तीनों को ऐड कर दीजिए। दैट विल बी नथिंग बट पी ऑफ ए, ये लिखा ना हमने, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री का मतलब क्या हुआ? ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तीनों को ऐड कर दीजिए। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन सी 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, राइट। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। That is nothing but the result of what? Probability of occurrence of exactly one of the three events. A तो केवल A, B तो केवल B और C तो केवल C. Exactly one of the three events. अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, सुनो डायरेक्ट कैसे, मैंने तो आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ओनली A ओनली B ओनली C, आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाया। डायरेक्ट कैसे लिख सकता था? देखो, डायरेक्ट अगर समझना चाहें आप जरूर समझ सकते हैं। ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तीनों को ऐड किया। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, ध्यान से देखिएगा प्लीज। प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, देख रहे हैं आप ध्यान से, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। आप ये ऑब्जर्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज कमिंग 2 टाइम्स। एग्जैक्टली वन का मतलब एक तो फिर केवल एक, दो या तीन नहीं होना। ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार आ रहा है? कब कब? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, P ऑफ A लिखने पर A इंटरसेक्शन B आ रहा है, P ऑफ B लिखने पर A इंटरसेक्शन B आ रहा है, 2 बार आ रहा है A इंटरसेक्शन B, हटा दीजिए उससे।
माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन बी. लाइकवाइज बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार आ रहा है, तो अगेन इट इज कमिंग 2 टाइम्स. पी ऑफ बी लिखा है तब भी आ रहा है, एज वेल एज पी ऑफ सी लिखा है तब भी आ रहा है, हटा दीजिए. एंड लाइकवाइज ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स. आपने रिमूव कर दिया उसे 2 बार. हुआ क्या, बोले सर ठीक है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स. ये 2 टाइम्स की बात समझ में आई क्या? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन सी. अब जरा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कहानी देख लें. ये आएगा ऑब्जेक्टिव में कि यार यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ देगा और ऑप्शंस होंगे प्लस या माइनस के साथ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 टाइम्स पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और आपको प्रॉपर मार्क करना रहेगा. आता है कंसेप्ट तभी तो करोगे, नहीं तो क्या करोगे. अब क्या हुआ कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक्चुअली इट इज कमिंग 3 टाइम्स. पी ऑफ ए में आ रहा है एक बार, पी ऑफ बी में आ रहा है एक बार, और पी ऑफ सी में आ रहा है 3 बार आ रहा है. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपने 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर भी 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया. जब मैंने ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, तब भी तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उड़ा दिया. जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी उड़ाया तो उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैंसिल कर दिया या रिमूव कर दिया. टोटली मैंने 3 टाइम्स एक्स्ट्रा था जो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन हमने उससे 6 टाइम्स रिमूव कर दिया. तो भैया ऐड करो 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन. ये मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन किया है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस. मैंने तो आपको बहुत बेसिक से बात करी यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी एंड देन तीनों का एडिशन. आ रहा है क्या समझ में? डायरेक्टली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. समझ में आया क्या आपको ये वाली बात? और क्लैरिटी आएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 2 of 3 events. दोस्तों exactly 2 of 3 events, exactly 2 of 3. probability of occurrence of exactly 2, exactly 2 का मतलब समझे क्या आप? 2 तो केवल 2, 3 नहीं होना और ना ही 1 होना. वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा शेडेड पोर्शन होगा? अगर मैं उसको शेड करके बताऊं आपको मैं, exactly 2 of 3, exactly 2 of 3. This is the reason in fact. This is the reason in fact. यही तो हुआ exactly 2 of 3. ये नहीं चाहिए मुझे, जो कि तीनों आ जाएंगे. कैसे लिखोगे? P of A इंटरसेक्शन B, ध्यान से देखें जरा, प्लस P of B इंटरसेक्शन C प्लस P of A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A. कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. You'll have to subtract it 3 times, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में भी आया है, B इंटरसेक्शन C में भी आया है और C इंटरसेक्शन A में भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आया है. हटा दीजिए. That is the result, which is nothing but the occurrence, probability of occurrence of exactly 2 of 3 events. Right? अब अगर मान लीजिए मैं कहता आपको, पहले समझ लीजिए, मैं टाइम दूंगा मैं आपको नोट करने के लिए, एटलीस्ट 2 of the 3 events. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी तो उस केस में तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो सब जीरो हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो साइमल्टेनियस ऑकरेंस पॉसिबल ही नहीं है उस केस में. तो समझ रहे हो ना? एटलीस्ट 2 of the 3. यार आपको यहाँ पे टर्म्स ध्यान से समझना होंगी. एग्जैक्टली 2 of the 3, एटलीस्ट 2 of the 3. अब एटलीस्ट 2 of the 3.
at least two of the three events. कम से कम दो. अब कम से कम दो, एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री में डिफरेंस है. एग्जैक्टली टू और एटलीस्ट टू में डिफरेंस है ना. एग्जैक्टली टू बोलूंगा तो फिर दो तो केवल दो, लेकिन एटलीस्ट टू बोलूंगा तो दो तो फिर तीन भी हो सकती है. एक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन. बोले सर ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. एग्जैक्टली टू में तो हमने थ्री टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को. अभी तीन बार नहीं हटाएंगे, हमें चाहिए एक बार. क्या क्या डिस्कस किया? एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इवेंट्स, एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री इवेंट्स, एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री इवेंट्स, एंड नाउ द लास्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा. आना हमें सभी कुछ चाहिए, विच इज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स. और जब बात की जाती है एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इवेंट्स, दो इवेंट्स में एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स क्या था? दो इवेंट्स के केस में एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स क्या था? ए यूनियन बी. यहां पे एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इवेंट्स, विच इज नथिंग बट, दोस्तों बहुत ध्यान से, ए यूनियन बी यूनियन सी. एंड हाउ टू राइट पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी? एटलीस्ट वन मतलब एक हो, एक भी होना चाहिए, दो एक हो, दो हो और तीनों हो. पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी. थोड़ा सोच समझ के आप मुझे बताएंगे क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए. सर अगर मैं आपको वेन डायग्राम में पूछूं कि व्हाट डज ए यूनियन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि वेन डायग्राम में ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो ए यूनियन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट क्या करता है वेन डायग्राम में? This complete reason, that is nothing but A union B union C. This is A union B union C, complete shaded portion. तो P of A plus P of B plus P of C, दोस्तों एक हो, दो हो, तीन हो. A इंटरसेक्शन B कितनी बार आ रहा है? P of A plus P of B plus P of C में दो बार आ रहा है. मुझे एक बार चाहिए, एक बार चाहिए, एक बार आओ. लाइकवाइज सी इंटरसेक्शन, भाई ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, दो दो बार आ रहे हैं. पहले सुनिए ना, आप बाद में लिखिएगा ना. ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इज कमिंग टू टाइम्स. मुझे एक एक बार चाहिए तो एक ही बार रिमूव किया. बट लेट्स डिस्कस अबाउट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री में तो एक हो, दो हो या तीनों भी हो. P of A plus P of B plus P of C लिखा है, तो हाउ मेनी टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हैज कम? P of A plus P of B plus P of C लिखने पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितनी बार आया है? 3 टाइम्स. अरे भैया P of A में एक बार, P of B में दूसरी बार, P of C में तीसरी बार, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा. मुझे चाहिए एक बार, ये बात अलग है. सोच समझ के बोलने का जो भी है. यहां पे मैंने तीनों बार रिमूव कर दिया उसको, 3 टाइम्स रिमूव भी हो गया ये. क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A 3 टाइम्स एक्स्ट्रा था वो, और तीनों बार रिमूव हो गया वो. मुझे चाहिए एक बार.
So it is, you'll have to add here plus P of A intersection B intersection C. That is the most important one. Probability of occurrence of at least one of the three events. यार यहाँ पे चार बातें डिस्कस करी हमने. पहली बात तो सिंगल इवेंट है ना, ऑकरेंस ऑफ ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री, एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स. अब आप क्या करें, फर्स्ट नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली एंड देन अगेन आई एक्सप्लेन द सेम कंसेप्ट. सो अगेन वी डिस्कस द कंसेप्ट बेस्ड ऑन द थ्री इवेंट्स. इवेंट डायग्राम हमने बताया. Yes, there are reasons which are common to both of the two events A and B, B and C, C and A, as well as some of the elements which are common to all the three A intersection B intersection C. Finally, what I have discussed, if I say A union B union C, that is nothing but A union B union C की अगर बात की जाती है, occurrence of at least one of the three events, that clearly shows the complete shaded reason ना, A B C, occurrence of at least one of the three events A union B union C. ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर. We have started with probability of occurrence of a single event, whether it is only A, only B and only C. जब मैं only A लिख रहा हूँ तो only A लिख रहा हूँ मतलब occurrence of a single event A. वहाँ पे A के साथ में B नहीं होना, A के साथ में C नहीं होना, तीनों नहीं होना, है ना. That means this reason only. तो क्या लिखा है मैंने, P ऑफ A. लेकिन दोस्तों P ऑफ A लिखते समय, P ऑफ A जब मैं लिखता हूं तो P ऑफ A में A इंटरसेक्शन B आ रहा है, A इंटरसेक्शन C आ रहा है, राइट. और दिस इज द पोर्शन विच इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट. सो मैंने P ऑफ A लिखा, मुझे केवल ओनली A रिक्वायर्ड है, सो A इंटरसेक्शन B रिमूव किया, एज वेल एज A इंटरसेक्शन C रिमूव किया, राइट. हुआ ये कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C को रिमूव करने में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दो बार रिमूव हो गया. आया एक ही बार था वो P ऑफ A लिखने पर, दैट्स वाई एक बार ऐड कर दिया गया. ठीक है. एंड सेम इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ओनली B एंड ओनली C. यहां तक तो बात क्लियर है शायद. ओनली A, ओनली B, ओनली C. अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली सी, ये तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आई विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री. तब मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री. ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया. ध्यान से देखिएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, ठीक, माइनस ऑफ P ऑफ इंटरसेक्शन B माइनस ऑफ P ऑफ इंटरसेक्शन B, ट्वाइस ऑफ P ऑफ इंटरसेक्शन B, P ऑफ इंटरसेक्शन C, P ऑफ इंटरसेक्शन C टू टाइम्स माइनस ऑफ, सब सीधे सीधे तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया गया. आ रहा है समझ में. मैंने डायरेक्टली भी एक्सप्लेन किया कि यार ये तो ठीक है, मैंने ओनली A, ओनली B, ओनली C को लिखा और तीनों को ऐड किया. अगर मुझे डायरेक्ट बात करना होती तब भी मैं कर सकता हूं, समझ सकता हूं कैसे. एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C. सो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C. P ऑफ A लिखने पर A इंटरसेक्शन B इज कमिंग हियर, P ऑफ B लिखने पर भी A इंटरसेक्शन B आ रहा है यहां पर. लाइकवाइज A इंटरसेक्शन C इज ऑल्सो कमिंग टू टाइम्स P ऑफ A प्लस P ऑफ C. समझ रहे हैं क्या? व्हेन आई राइट P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, आप बताइए मुझे A इंटरसेक्शन B कितनी बार आ गया? जब P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C लिखा है और मुझे एग्जैक्टली वन रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी टाइम्स A इंटरसेक्शन B हैज कम? टू टाइम्स, हटा दिया. लाइकवाइज B इंटरसेक्शन B भी दो बार आया, हटा दिया. और इंटरसेक्शन C भी दो बार आया, हटा दिया. हुआ ये कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C लिखने पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वॉज कमिंग थ्री टाइम्स, एक एक बार तीनों में.
मुझे नहीं चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन क्या हुआ कि 3 बार आ रहा था और हमने उसे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स रिमूव कर दिया। 3 बार था, नहीं चाहिए था, लेकिन आपको 3 ही बार हटाना था, आपने 6 टाइम्स रिमूव कर दिया। तो आप ऐड करिए ना, बैलेंस करना होगा आपको। तो 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये हुआ एग्जैक्टली वन ऑफ द 3। इसके बाद हमने कहा कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 का मतलब हुआ 2 तो केवल 2, ना 1 भी नहीं और 3 भी नहीं। तो 1 भी नहीं, तो फिर हमने P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C को तो हटाया पिक्चर से। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ इंटरसेक्शन C, है ना। दिस इज द पोर्शन। मैंने आपको ये ब्लैक मार्कर से जो शेड किया तीनों जगह, ये रिक्वायर्ड रीजन है। सो A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन C। लेकिन A इंटरसेक्शन B लिखने पर भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ रहा, दिख रहा है ना। तो इन तीनों को तो ऐड किया मैंने, लेकिन दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर अस। 3 टाइम्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। एग्जैक्टली 1, सॉरी हाँ, एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3, फिर एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, उसी में आगे बात बढ़ाई एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, कम से कम 2। अब कम से कम 2 में एक तो नहीं चाहिए, 2 हो और तीनों भी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 2 की बात तो हम करके बैठे थे, ये सुन लेना ये ध्यान से, ये तो ऑलरेडी बात करके बैठे हैं। अब एटलीस्ट 2 कहा तो तीनों भी हो सकती है। यहां पे 3 बार एक्स्ट्रा आया था, तीनों बार हटा दिया। मुझे चाहिए एक बार, मुझे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एक बार चाहिए, चाहिए ना, ऐड कर दो। समझ रहे हो क्या? एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, 2 हो तो 3 भी हो सकती है। तो एक बार अगर आप ऐड करोगे तो -3 टाइम्स P ऑफ इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विल बिकम माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ P ऑफ इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। आ रहा है क्या समझ में? एंड फाइनली, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, लेकिन आना सबको चाहिए। अब रिलेवेंट की क्या बात है, सभी को समझ लिया, क्या परेशानी है। एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 है ना, कंप्लीट शेडेड रीजन, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3, A यूनियन B यूनियन C, कम से कम, है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3, कम से कम एक हो, 2 हो, तीनों हो। P ऑफ A प्लस P ऑफ 1 B, 2 B, 3 B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। A इंटरसेक्शन B 2 बार आया था, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A सब 2-2 बार आए। मुझे चाहिए एक बार, इसलिए एक बार हटा दिया गया। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3 बार आ रहा था, 3 टाइम्स। कब? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C लिखने पर 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज कमिंग। तीनों टाइम्स रिमूव कर दिया मैंने। मुझे चाहिए ना एक बार, ऐड करो इसको। दैट इज अबाउट P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। वैसे ये रिजल्ट है जो आपको याद ही होना चाहिए, और याद तो अगर इतने थोड़ा सा प्रॉपरली समझेंगे आप तो फिर सारी रिजल्ट याद हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नाउ द क्वेश्चन इज, वन टिकट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 नंबरिंग है और उसमें एक टिकट सिलेक्ट किया गया रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। टिकट बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10, 50 टिकट्स आर देयर। रिक्वायर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और जो रिक्वायर्ड है P ऑफ A यूनियन B यूनियन C विच इज रिक्वायर्ड हियर, 2, 3 या 10 का मल्टीपल होना। राइट, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट्स। 2 और 3 और 10 का मतलब ही A यूनियन B यूनियन C की बात है। जस्ट नाउ वी हैव रिटन P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A
प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। देखो मल्टीपल ऑफ 2, लेट्स से इसको ए से डिनोट कर रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 3 इसको बी से डिनोट कर रहा हूं, और मल्टीपल ऑफ सी को 10 से डिनोट कर रहा हूं। सो व्हाट इज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए से सीधा सा मतलब हुआ ऐसे टिकट्स जो 2 के मल्टीपल हैं, है ना। पी ऑफ ए मतलब ये ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 2, 50 टिकट में से कितने टिकट्स हैं जो कि 2 के मल्टीपल होंगे, 1 से 50 तक नंबरिंग है, तो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। 25 टिकट्स आर देयर, ठीक है ना, 25 टिकट्स आर देयर, 25C1 डिवाइडेड बाय 50C1, 25/50, ठीक है। P ऑफ B मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल टिकट्स, सैंपल स्पेस तो 50C1 50 की सैंपल स्पेस है, 3 के मल्टीपल 3 6 9, कितने टिकट्स हो रहे हैं इनसे? बोले सर सोचते हैं, क्या सोचना है यार, अप टू 48 तक जाएगा वो, कितने टिकट्स हैं इनसे? 16 टिकट्स आर देयर। P ऑफ C ऐसे टिकट्स जो 10 के मल्टीपल हो, 10 20 30 40 50, 5 टिकट्स आर देयर। फाइन। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे टिकट जो 2 और 3 के मल्टीपल हो। मल्टीपल ऑफ 2 को मैंने ए कहा है, मल्टीपल ऑफ 3 को 5 बी कहा, चलेगा ना, कह सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 10 को सी कहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ऐसे टिकट्स जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हैं। 2 और 3 का मल्टीपल का मतलब हुआ 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6 के मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना। तो 6 के मल्टीपल कितने हो गए 1 से 50 में? 8 टिकट से। समझ में आ रहा है ना? 6 के मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल ना 6 की टेबल लिख लो, 6 6 12 18, देख सकते हैं 48 तक जाएगा। 8 टिकट्स, 8C1 डिवाइड बाय 50C1, ध्यान रखें तो सब समझ में आएगा। कंसंट्रेशन एक जगह हो बेहतर रहेगा। मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 10, 3 और 10 दोनों का मल्टीपल हो, 3 और 10 का मल्टीपल दोनों का एलसीएम, 3 और 10 का एलसीएम 30, 30 के मल्टीपल 1 से 50 में एक ही आएगा, नंबर 30, एक ही टिकट है। ए इंटरसेक्शन सी जो 2 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल, और 2 और 10 का एलसीएम तो 10 ही हुआ, 2 और 10 का एलसीएम 10, तो 5 टिकट्स आर देयर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे टिकट्स जो तीनों के मल्टीपल हैं, 2 3 और 10। अगेन 2 3 10 तीनों के मल्टीपल होना मतलब तीनों का एलसीएम 2 3 10 का मल्टीपल कितना हो रहा है 30, सिंगल टिकट इज देयर। ये समझाने के लिए 1C1 लिख रहा हूं, वो तो क्लियरली 1 ही है ना। ये हो जाएगा 25/50, 16/50, 5/50, 8/50, 1/50, 5/50 एंड 1/50। वैल्यूज प्लेस कर दीजिएगा and you are going to get the result. Probability of getting a multiple of ticket of multiple of 2 or 3 or 10. That is simply P of A union B union C which is required here. Now again look for a simple question. Some data is given to you, P of A, P of B, P of C, P of A intersection B, P of A intersection C, P of A intersection B intersection C. P of A union B union C is there in between the range of 0 to 1 और P of B इंटरसेक्शन C पूछा है आपसे। हाँ जी बताइए कहाँ पे एरर है?
P of A is 0.3, P of B is 0.4, P of C is it is 0.8. Okay, A union B union C 0.75. 0.75 to 1. ठीक है. So again, probability of occurrence of at least one of the three events, A union B union C, P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection C, B intersection C, right? As far as P of A union B union C is given, it is given that range is given to you as 0.75 to 1. सारा डेटा given है. A B intersection C is the only required one. बढ़िया है. That will be 0.3 plus 0.4 plus 0.8 minus of A intersection C 0.28. B intersection C is required here. A intersection B is 0.08 plus P of A intersection B intersection C is 0.09. और आपको पूछा गया है what is P of B intersection C. What is that sum is coming as? Can you tell me this value after solving? तीनों का एडिशन माइनस 0.28 सब्ट्रैक्ट किया, हाँ 1.23 माइनस ऑफ, राइट. सॉल्व कर लिया, सिंपल सिंपल. रेंज इज गिवन टू यू एज A union B union C has been given from 0.75 to 1. Only unknown here is P of B intersection C. वही मिलेगा आपको, और क्या मिलना. कर पाएंगे ना. P of B intersection C माइनस साइन के साथ में अगर मैं लिखता हूं तो 1.23 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस ऑफ 0.23, 1.23 इधर से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, माइनस ऑफ 0.48. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी. 0.23, 0.48. दैट इज द रिजल्ट. यार ये तो हमने कुछ बड़ा भारी काम नहीं किया. वी हैव जस्ट टेकन द हेल्प ऑफ P ऑफ A यूनियन B यूनियन C. पर ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो पूछे जाएंगे. अब आपको रिजल्ट ही याद नहीं है या फिर आप कैलकुलेशन एरर करोगे तो फिर तो दिक्कत में आ जाओगे. करा क्या है इसमें, बहुत बड़ा काम तो कुछ किया नहीं है सच. वैल्यूज को जस्ट प्लेस किया है हमने. अब आप इसमें भी एरर कर दोगे तो फिर परेशानी है. अब आप बोले सर अब भूल गए A यूनियन B यूनियन C क्या है, तो फिर दिक्कत है. Now let's take a previous year JEE question for 3 events A B C. 3 events के बारे में बात कर रहा है. For 3 events A B C, if जो डेटा या इंफॉर्मेशन गिवन है, that is probability of happening of exactly A or B, P, probability of happening of exactly B or C is P, and probability of
happening of exactly C or A is P. At the same time, happening of A, B, C together is equals to P square. Value of P has been given from 0 to half. और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स ए बी सी दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू. ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है. द फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट्स. बोले सर तीन इवेंट्स की बात है, हाँ, लेकिन जो डेटा या इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट्स. क्या था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट्स? अगर ए और बी इवेंट्स की बात करते हैं आप, उस केस में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पन्ना पलट के देखेंगे, यू विल बी गेटिंग दैट. P of A plus P of B minus of P of A intersection B, exactly B और C. दो इवेंट्स की बात कर रहा है अभी वो, तो दो तक हम बात कर रहे हैं. B या C, exactly one of the two. P of B plus P of C minus P of B intersection C. Sorry, twice. Right? And the third one, P of A plus P of C minus twice of P of A intersection C. जो फिर इंफॉर्मेशन गिवन है, हैपनिंग ऑफ ए बी सी टुगेदर. व्हाट डज इट मीन? हैपनिंग ऑफ ए बी सी टुगेदर. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. पूछा क्या है उसने? ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है उसने. ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स. पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्लियर है कि नहीं? ये तो जो डेटा गिवन है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, तो ठीक है, उसी का यूज किया इन तीनों में. बोले सर तीन इवेंट्स की बात हो रही थी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द टू तो उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे. मिला क्या? दो इवेंट्स की अगर बात करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द टू क्या होता है? एटलीस्ट वन ऑफ टू होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और एग्जैक्टली वन ऑफ द टू क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अभी तो आपने तीन इवेंट्स की बात कर ली, तो बहुत ही सामान्य लेवल की बात हो गई. होना तो यही चाहिए. That's what is required to us. ये हमें रिक्वायर्ड है. क्या करेंगे आप? ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना, these फोर. और ये रिक्वायर्ड है. ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें. ऑन एडिंग 1 2 3, फोर्थ को भी ऐड कर दें. या चलिए पहले एडिंग 1 2 एंड 3.
तीनों को ऐड किया हमने, देख ले ध्यान से, तीनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं, सो व्हाट यू आर गेटिंग, p प्लस p प्लस p, 3p इज इक्वल्स टू p of a plus p of a 2 times, p of b plus p of b 2 times, p of c plus p of c 2 times. Right? That is 3p. तीनों को ऐड कर दिया, बोला सर फिर क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, अरे समझ रहे हो ना। तो p of a plus p of b plus p of c minus of p of a intersection b minus of p of b intersection c, c intersection a, 3p/2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं प्लस p ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इधर भी ऐड कर देता हूं p ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दोनों साइड ऐड कर दिया, ऐसा बोल दीजिए। बोले सर क्यों, क्यों क्या, इसको देख लो आप, इट इज सेम, p of a plus p of b plus p of c minus p of a intersection b minus p of b intersection c minus p of c intersection a plus p of intersection b intersection c, ये दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने, दैट इज नथिंग बट p of a यूनियन b यूनियन c। ये क्या मिला है आपको, दैट इज नथिंग बट p of a यूनियन b यूनियन c, विच इज नथिंग बट, क्या रिजल्ट आया, 3p/2 प्लस p स्क्वायर, रिजल्ट। आसानी से बात बन जाती, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं, exactly one of the two, exactly one of the two, exactly one of the two, all three together and a union b union c is required। ठीक है, राइट। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1 2 3 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया फिर, और फिर p ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को ऐड कर दिया गया। Now the question is, probability that a student pass in the exams of maths, physics and chemistry, probability that a student pass in the exams of maths, physics and chemistry are small m, small p and small c respectively। मैथ्स में पास होने की probability small m, फिजिक्स के लिए small p and केमिस्ट्री के लिए small c। ठीक है, of these subjects student has 75% chance of passing at least one of the three। अब at least one of the three, तीनों में से कम एक सब्जेक्ट में पास हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी 75% है। 50% चांस इज देयर ऑफ पासिंग एट लीस्ट 2 ऑफ द 3, कम से कम 2 में पास हो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, 50%। एंड चांस ऑफ पासिंग एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 की जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है 40%। और आपसे कहा गया है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ p प्लस m प्लस c। देखिए जरा, at least one of the three, that is nothing but p of a union b union c, and that is given to you as 75% या 0.75, right? And that is already known to you as p of a plus इसको p of a, p of b, p of c बोल देंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री।
50% चांस ऑफ पासिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, 0.5 एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 जरा बताइएगा, कम से कम 2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, कम से कम 2, तो 2 में तीनों आ सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 की बात कर रहा है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज कमिंग 3 टाइम्स, एक बार एक बार एक बार, 3 बार आ रहा है, लेकिन तीनों बार नहीं हटाना है, 2 बार हटाएंगे क्योंकि एक बार हमें चाहिए। माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ, राइट, 40% चांस ऑफ पासिंग एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 क्या बोलते हो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ C इंटरसेक्शन A। ये पुरानी बात नहीं है कि 1 साल पहले डिस्कस किया था, आज ही डिस्कस किया 1 घंटे पहले, है ना अपन ने। माइनस ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, 2 तो फिर केवल 2, 3 नहीं होना, एंड दैट इज गिवन एज 40%, 0.4। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है P प्लस M प्लस C, P प्लस M प्लस C, यहाँ पे P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज रिक्वायर्ड हियर, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट है, क्या है, कुछ बनेगी बात, नहीं बनेगी, देखो जरा। P ऑफ अब 0.75 इज ऑल्सो गिवन टू यू, और ये आपसे पूछ रहा है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। कुछ है संभावना है आने की, आना तो चाहिए। देखो 0.5 इज गिवन टू यू, तो 0.5 जो दिया है वो दिया है आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ P ऑफ इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, माइनस ऑफ 3 टाइम्स। क्या करें, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, बहुत साधारण सी बात यार, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, अरे क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सिंपली A इंटरसेक्शन B कट जाएगा, B इंटरसेक्शन C कैंसिल होगा, C इंटरसेक्शन A कट जाएगा। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते थे आप, ऐसे भी बहुत बड़ी भारी बात नहीं हो गई। आई कैन डेफिनेटली से, फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, सेकेंड माइनस थर्ड, दैट विल बी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1। अच्छी बात है, तो हो गई यार, बात बन गई अपनी, और क्या चाहिए दोस्तों। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर 0.1 आ गया तो दिस वैल्यू वी हैव गॉट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, या लिखना तो चाहिए हमें, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ C इंटरसेक्शन A। कितना आ रहा दोस्तों, 0.7। इधर रखो या इधर रखो, रिजल्ट तो सेम आना चाहिए, तय बात है, अलग अलग थोड़े ना आएगा। 0.4 प्लस ये 0.3 होके 0.7। ठीक है, अभी सभी कुछ तो आ गया। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C रिक्वायर्ड है, 0.75 के बराबर है, ठीक है ना, तो यहीं पर लिख रहा हूं मैं, 0.75 इज इक्वल्स टू P प्लस M प्लस C माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A, 0.7 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 0.1। दैट इज द रिजल्ट। काफी कम आ रही क्या संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी एक्सीड हो रही है। हाँ, कितनी हो रही है, 1 पॉइंट
1.31। एक्चुअल में वो प्रोबेबिलिटी का सम है, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी पूछा क्या उसने, P प्लस एम प्लस सी, P प्लस एम प्लस सी, तो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। थोड़ा सा सोचिए, डेटा या इंफॉर्मेशन में कहीं एरर है, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अप्रोच इज क्लियर, अप्रोच तो क्लियर है। 75% चांस ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, 50% चांस ऑफ पासिंग एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री, 40% चांस ऑफ पासिंग एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री। कैलकुलेशंस हमने सॉल्व करी, सब कुछ आपके सामने, and what we are getting as 1.31, whether it is correct or not, or some correction is required. Which one? This one? 0.7 नहीं होगा, मतलब अच्छा इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो 0.7 ही आ रहा है ना? नहीं 1.5 का आ रहा है। 2 इंटू 0.1 तो 0.2 हो जाएगा, 0.28 होगा तो 0.7 हो जाएगा। भाई हम तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, फिर बाद में बात की जाएगी वेदर दैट डेटा इज करेक्ट और नॉट, वो ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री, एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, सारी बात हो गई है। तो कैलकुलेशंस हैं, जो रिजल्ट आया वो 1.31 आ रहा है हमारे पास, तो ठीक है ना। नाउ द two questions are there for two events, simply two events are there, event A as well as event B. These two events are there such that the first one, P of A is 2 by 5, P of B is 1 by 3, P of A complement intersection B complement is 4 by 15. Second one is again some data is given, और दोनों में आपसे पूछा गया है whether these two events are mutually exclusive or not. Mutually exclusive के केस में simultaneous occurrence of the two events is not possible. If two events are said to be mutually exclusive, provided simultaneous occurrence of the two events is not there, A intersection A intersection B must be equals to 0 there. Let's verify that. For the first one, P of A complement intersection B complement, A complement intersection B complement, non-occurrence of A, non-occurrence of B, that is nothing but that we have discussed 1 minus P of A union B, right? Today only we have discussed non-occurrence of A as well as non-occurrence of B. It is given as 4 by 15, 1 minus of P of A plus P of B minus of P of A intersection B. Just put those values here. 2 by 5 plus 1 by 3 minus of P of A intersection B. After solving, what result you are getting here? A intersection B की वैल्यू क्या आ रही है? Only unknown is A intersection B, which is required actually. If it is coming 0, then we are going to say कि yes, it is exclusive. अगर 0 आ जाता है इसका मतलब साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज नॉट देयर, और अगर 0 नहीं आता कुछ वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब साइमल्टेनियस ऑकरेंस पॉसिबल है अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बट व्हाट यू आर सजेस्टिंग 0. इफ इट इज 0, फाइन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पक्का, साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज नॉट पॉसिबल, बड़ी अच्छी बात है। एंड लाइकवाइज वी कैन लुक फॉर द सेकंड वन आल्सो. P of A is given as 3 by 7. P of B complement is 1 by 2. So P of B is nothing but 1 by 2. B complement दिया है. And again, it's a similar type of question. In fact, A complement intersection B complement 1 by 14, as we have discussed earlier, for the same question, that can be written as 1 minus P of A union B, 1 by 14 is equals to 1 minus of and please again verify after keeping the value of P of A and P of B, फिर से वैल्यू रख दीजिए P of A और P of B की,
3/7 1/2 वैल्यू पुट कर दो एंड प्लीज चेक व्हाट यू आर गेटिंग फॉर ए इंटरसेक्शन बी. पक्का? इफ इट इज कमिंग 0 अगेन यस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज नॉट देयर. एक इतनी सी तो बात का यूज किया हमने, तो मैंने शुरुआत में भी समझाया था आपको. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, विच इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी. है ना? अब आप दो इवेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो दो इवेंट्स के केस में अभी मैं एक्सक्लूसिव है उसकी बात की नहीं कर रहा हूं मैं. दिस इज द पोर्शन विच इज ए यूनियन बी. ये जो शेडेड पोर्शन है ये है ए यूनियन बी. ठीक है? और 1 माइनस अगर करूंगा मैं तो आई विल बी गेटिंग द रिमेनिंग पोर्शन. ना ए हो ना बी हो, आई विल बी गेटिंग दिस पोर्शन. दोनों में कह रहे इंटरसेक्शन बी 0 आ जाता है, मतलब साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज नॉट पॉसिबल. सो यस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. हाँ, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है तो अरे तो बी कॉम्प्लीमेंट अगर 1/2 है तो पी ऑफ बी भी तो 1/2 ही होगा. पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन एज हाफ, तो पी ऑफ बी इज व्हाट 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ. है ना? अगर मान लीजिए पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं, दोनों का सम तो 1 होगा ना. बी कॉम्प्लीमेंट इज हाफ, तो पी ऑफ बी इज ऑल्सो हाफ. मान लीजिए पी ऑफ ए इज 3/7, तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस 3/7, 4/7. राइट?